A very pleasant and charming good morning, my dear students. Children, today we are going to discuss chapter number 11, the Gupta and the post Gupta period. Children, the last two chapter, that is chapter number 9, life in village and town, and chapter number 10, children, that is omitted, that is not included in your syllabus. So both the chapter 9 and chapter number 10, we are not going to discuss, and that will be not asked in your annual exam also. Okay, so both that two chapters are not going to come. But today, children, we will discuss chapter number 11. Okay. So from chapter number 8 directly now we are discussing chapter number 11, that is Gupta and the post Gupta period. Is that clear, children? Under this we are going to discuss some intro part, then some sources from where do we get the information about this Gupta empire, Gupta rulers. Okay, so today we are going to discuss about Chandragupta 1. Children, see in chapter number 8 also we have learned Chandragupta Maurya, right children? So that Chandragupta Maurya is different, and here Chandragupta 1 is different. They are not the same. This Chandragupta one is of Gupta empire, Gupta period, okay, of Gupta dynasty. So children, why Chandragupta one? Because there are Chandragupta two also. Is that clear? But today we will discuss Chandragupta one and Samudragupta. Is that clear, children? So these are the topic, children, we are going to discuss in our today's class. In this lecture, we will discuss till year only. Okay, children, clear? So, children, just wait. I am sharing the screen. Yeah, yeah. So, children, come on, everyone. Be ready with your book and please open chapter number 11. That is Gupta and post Gupta period. Okay. Now, see, children. First, we will discuss the history. Okay. So, children, now Gupta Empire was founded by Sri Gupta. ओके चिल्ड्रेन द फाउंडर चिल्ड्रेन जो फाउंडर है इस गुप्ता एम्पायर का वो है श्री गुप्ता चिल्ड्रेन चंद्रगुप्त जो वन है वो फाउंडर नहीं है वो फर्स्ट पावरफुल रूलर है जो बहुत फेमस रूलर है वो है चंद्रगुप्त वन बट इस गुप्ता एम्पायर की जो स्टार्टिंग जो स्टैब्लिश जो फाउंडर है वो किसने नींव रखी थी मीन्स इस पीरियड की स्टार्टिंग किससे हुई थी वो हुई थी श्री गुप्ता से अंडरस्टूड सो चिल्ड्रेन फाउंडर ये अलग है और जो फर्स्ट पावरफुल रूलर है वो अलग है ठीक है तो फाउंडर कौन है चिल्ड्रेन आपको ये याद रखना है आपकी बुक में नहीं है ओके ही इज श्री गुप्ता अंडरस्टूड और इसी से चिल्ड्रेन गुप्ता डायनेस्टी का भी जो नाम है वो पड़ा है ठीक है द गुप्ता एंड द पोस्ट गुप्ता पीरियड ठीक है नाउ इट कवर्ड मोस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट और जब ये आए चिल्ड्रेन तो उन्होंने बहुत सारा प्लेस जो है कॉन्केस्ट किया ओके बहुत सारी जगहों पे उन्होंने अटैक किया और श्रीगुप्त के समय में चिल्ड्रेन वो ज्यादा एम्पायर ओके वो ज्यादा प्लेसेस नहीं ऑक्यूपाई कर पाए वो केवल छोटे छोटे किंगडम पे ही वो कब्जा कर पाए उन्होंने एक ह्यूज एम्पायर उन्होंने नहीं बना पाया था ओके वो उतने पॉपुलर नहीं थे ओके इसीलिए उनके बारे में इतना डिटेल्ड में हम नहीं पढ़ेंगे ओके पर जो पावरफुल रूलर जिनके टाइम में वो बहुत ज्यादा एम्पायर उनका एक्सटेंड हुआ बहुत ज्यादा सारी चीजें उन्होंने ऑक्यूपाई की अटैक की ओके बड़ा एम्पायर जिनके समय में बना वो थे चंद्रगुप्त वन अंडरस्टूड नाउ इट एग्जिस्ट एज इट zenith now what is zenith children highest at the top from approximately from 320 to 550 CE. CE means what children? Common era. Okay. सो ये लोग कब से कब तक थे चिल्ड्रन गुप्ता डायनेस्टी जो गुप्ता पीरियड है फ्रॉम 320 टू 550 सीई अंडरस्टूड और चिल्ड्रन इस पीरियड को गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी कहा गया है अंडरस्टूड क्योंकि इस समय बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स का माइंड हुई गई थी ओके बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स बने थे बहुत सारे इन्वेंशंस हुए थे डिस्कवरीज हुई थी understood were made during this time in the field of literature mathematics, astronomy, arts, religion, science, philosophy, and engineering.
Understood? That is why this period is known as golden age of India. Now गुप्ता पीरियड प्रोड्यूस्ड मेनी स्कॉलर, और इस समय बहुत सारे स्कॉलर्स भी थे. कौन थे वो लोग? विष्णु शर्मा, कालिदास चिल्ड्रन द प्ले राइटर, ओके, एंड आर्यभट्ट ऑल्सो. अंडरस्टूड? And even art and architecture of Gupta period is still very famous till now also. Okay, clear children? Now see, even children, this by the end of 3rd century CE, the powerful empire established by the Kushans in north and Satvans in the Deccan. Okay, so children, जो खुशांस, हमने जो 2 चैप्टर नहीं पढ़ा उनके बारे में, उस चैप्टर में मेन खुशांस और सातवांस जो लोग थे, जो रूलर्स, उनके बारे में था. ओके, जो वहां का एम्पायर क्या है, धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा. कब से? 3rd सेंचुरी, क्योंकि कोई पावरफुल रूलर नहीं था. तो उसके बाद जो एम्पायर स्टैब्लिश्ड हुआ वो था गुप्ता एम्पायर. अंडरस्टूड? और ये कितने सेंचुरीज तक उन्होंने रूल किया इंडिया में? फॉर द नेक्स्ट 2 सेंचुरीज तक जो है वो रूल कर रहे थे. अंडरस्टूड? नाउ चिल्ड्रन वी विल टॉक अबाउट द सोर्सेस. ओके, so information about the Gupta period children is available from both, from archaeological also and from literary sources also. Now what is archaeological and what is literary children? Literary means written sources. Okay, any books, anything, okay, any written account, okay, that will come under literary sources. What do you mean by archaeological children? For any material, anything, any object, for example tape, temples, paintings, pillar inscription, rock addict, coins, okay, many other things, okay, that is called as archaeological. Okay, the evidences, the proof which we have got, that will come under archaeological sources. Okay, so sources children, the most important archaeological sources children is Allahabad pillar inscription. Today in this chapter we are going to study, okay, about the Allahabad pillar inscription. So that is very important. And even and other than children Allahabad pillar inscription, apart from Allahabad pillar inscription, what are the other sources? That are temples, paintings and coins, okay, are some other archaeological sources. And the main literary sources children, it include the work of Kalidas, okay, and even accounts of Fayan and Itzing, okay, that is Itzing, or you can say Tsang. Understood? So these are some foreign travelers, okay, foreign who have visited India, okay, and for us religious purposes. Understood? And they have written some book, okay, some documents they have prepared. Understood? So that is the account of Fayan, account of Itzing, and a work of Kalidas. Okay, but Kalidas children, it is an Indian, right? But these two are foreigners, okay, who has visited India. Clear children? Now see children, we will discuss the account of Fayan. Okay, now Fayan was a Chinese pilgrim. Now what do you mean by pilgrim children? A person who travels, okay, from to a sacred place for religious purposes, okay, for religious reason, okay, that is called as pilgrim, who visited India and he visited and observed many places. वो बहुत सारी जगह पे घूमे, ओके, उन्होंने बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व की. और वो कौन सी जगह पे विजिट किए थे? लाइक मथुरा, कनौज, कल्पीवस्तु, कुशीनगर, वैशाली, पाटलिपुत्र, काशी, etc. Okay, now according to him children, Magad was a prosperous, what do you mean by prosperous? It was very flourishing country, okay, with large town and wealthy population. Okay, it was very large, बहुत बड़ा टाउन था और बहुत बहुत ज्यादा पॉपुलेशन भी थी यहाँ पे. कहाँ पे? मगध. एंड पाटलिपुत्र वॉज अ डेवलप्ड सिटी, और जो पाटलिपुत्र था वो क्या था? एक डेवलप्ड सिटी था. ओके, दो पीपल हैज अ वेल्दी, ओके, भले ही लोग इतने ज्यादा अमीर थे, बहुत ज्यादा पैसा था उनके पास सभी की, बट दे लिव द सिंपल लाइफ. उनकी जो लाइफ स्टाइल थी वो कैसी थी? वो बहुत ही सिंपल तरीके से अपनी जीवन बिताते थे. ओके, उनकी लाइफ स्टाइल बहुत ही सिंपल थी. एंड कौन सी रिलीजन, वो कौन क्या फॉलो करते थे? एंड दे फॉलोड बुद्धिज्म. ओके, ना इवन, और ऐसे नहीं कि केवल बुद्धिज्म ही था चिल्ड्रन, इसके अलावा भी और बहुत सारे रिलीजन्स उस समय भी थे. ओके, क्योंकि कुछ इमेजेस, कुछ चीजें ऐसी पाई गई है जिससे हमें पता चलता है कि और भी सारे ऐसे गॉड और गॉडेस है जिनको उस समय पूजा जाता था. ओके, सो इमेजेस ऑफ हिंदू गॉड्स वेर सीन ऑन कॉइन्स, ऐसे बहुत सारे इमेजेस थे
जो कॉइन्स वगैरह पे मिले हैं जो हिंदू गॉड से, ओके, उनके स्कल्पचर्स एक्सेट्रा। पनिशमेंट वेर माइल्ड, ओके, जो पनिशमेंट दी जाती थी अगर किसी ने कुछ गलत काम किया है तो पनिशमेंट भी बहुत नॉर्मल, बहुत ही मीन्स हार्श पनिशमेंट लोगों को नहीं दी जाती थी, ओके, नॉट सीवियर, एंड वेर इन द फॉर्म ऑफ फाइन्स। तो फाइन के तौर पे कि आपने अगर कुछ गलत काम किया है, आपने कुछ अपराध किया है, तो आपको ये जो फाइन है वो आपको भरना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हमें कैसे पता चली है चिल्ड्रेन? जो भी फायानी, जो भी अकाउंट, जो भी लिखा था उन्होंने, उनकी जो किताब थी, जो भी डॉक्यूमेंट्स था, उनके थ्रू हमें पता चलता है। अंडरस्टूड चिल्ड्रेन? Yes. Now we will discuss about work of Kalidas. Okay, children, and we know that Kalidas, children, yes, अभिज्ञान जो शकुंतला था चिल्ड्रन, वो भी किसका लिखा हुआ है? कालिदास का, राइट चिल्ड्रन? सो कालिदास, he was the greatest poet also and a playwright also, right? India has ever produced. His work include Meghdut, Ritu Samhar, then Raghuvamsa, then Kumar Samva. Okay, so these are some work, okay, some accounts, and he spoke about love, nature, beauty, and it also gave information about the government during the Gupta period, okay, and the society seen in Gupta period. So that he has written. Even children, one famous university, right? So Nalanda University was also established during that time only. Okay, children, it was seen. This university was seen during that period also. So this is very oldest, okay, university you can say in the world, in India, right? So it was most renowned. Renowned means famous, very popular, very famous university of ancient India. Nalanda is located in Bihar, right, children? Now, and Yuan Sang, children, he is also a Chinese traveler, also had mentioned about the grandness of Nalanda. Okay, it has many buildings, and and it was surrounded by walls. Okay, and there are 3 huge libraries also, and provided all facilities free to, and it was free. Okay, there was not any charges that student have to pay. It was free of cost, okay, to the student from various parts of India and other country also, like Japan, China, Tibet, studied here. They used to come here, okay, for distance learning, and they used to study here. Okay, and which are the subjects taught children in Nalanda University? Subjects such as medicine, yoga, mathematics, science, astronomy, etc. Okay, so there were many some other subjects also which was taught in Nalanda University during that time. Clear, children? Yeah. So children, this will come under literary sources. Understood? So this we have discussed about the literary sources. Okay, all the accounts, all the written accounts, right, children? Now next we will discuss about the archaeological sources. So first we will discuss about Allahabad pillar inscription. Second one is Deoghar, that is Vishnu temple. Understood? So first let's discuss about Allahabad pillar inscription. Children, this inscription of Allahabad pillar is also called as Prayag Prashasti. Okay children, इसको प्रयाग प्रशस्ति भी के नाम से भी जाना जाता है। जो ये अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है, इसको और क्या बुलाया जाता है? प्रयाग प्रशस्ति। अंडरस्टूड? नाउ इट प्रेजेस समुद्रगुप्त। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्रेज चिल्ड्रन? इसमें उनकी तारीफ की गई, उनकी प्रशंसा की गई है। ओके, किसकी? समुद्रगुप्त की। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट गुप्ता रूलर। और चिल्ड्रन, ही वॉज वेरी फेमस, ही वॉज वेरी काइंड रूलर, ही वॉज वेरी पावरफुल। ओके, it was composed by poet named Harisena in Sanskrit. Okay, चिल्ड्रन, उनके एक कोर्ट पोएट भी थे जिनका नाम था हरिसेना। ओके, सो उन्होंने एक पोयम या ऐसे कुछ चीजें जो है उन्होंने लिखी थी, शॉर्ट पोयम, जिसमें उन्होंने किसकी तारीफ की है? जो है समुद्रगुप्त, उनकी उन्होंने काफी तारीफ की है। ओके, सो दैट नाउ समुद्रगुप्त चिल्ड्रन, इट डिस्क्राइब्स, और उसमें क्या बताया है? इट डिस्क्राइब्स द किंगडम। ओके, उनका किंगडम कहाँ से कहाँ तक था, उन्होंने कौन सी बैटल जो है वो लड़ाई लड़ी थी। ओके, वो कितने पावरफुल थे, वो किस तरीके के पर्सन थे, वो सारी चीजें उसमें लिखी गई थी। नाउ समुद्रगुप्त फर्स्ट डिफीटेड नॉर्थर्न रूलर एंड देन हेडेड फॉर डिफीटिंग सदर्न रूलर। समुद्रगुप्त जो फर्स्ट कहाँ पे उन्होंने डिफीट करना स्टार्ट किया? नॉर्दर्न साइड में, ओके, नॉर्दर्न पार्ट में, एंड देन उसके बाद वो कहाँ पे लग गए? अटैक करने, कॉन्क्वेस्ट करने, देन सदर्न रूलर्स, उनको हराने में वो
जो भी सदर्न रूलर्स, साउथ साइड में जितने भी रूलर्स थे उनको हराने लगे. ही अलाउड द सदर्न रूलर्स टू रूल बट टू ट्रिब्यूट्स. उन्होंने क्या किया, सदर्न रूलर्स को उन्होंने कहा कि आप रूल कर सकते हैं बट आपको कुछ एनुअली कुछ मनी या कुछ वैल्यूएबल थिंग्स आपको देनी पड़ेगी. Children, in the last PPT, I will explain you this in detail also. Okay, children? Here it is explained in short. Okay, to give tributes for them, many tribes surrendered their kingdoms to Samudra. So ऐसे बहुत सारे ट्राइबल्स जो पीपल्स से चिल्ड्रन आदिवासी, उन्होंने अपने किंगडम जो है वो सरेंडर भी कर दिए थे. किसको? समुद्रगुप्त को. ओके. Now after this victorious, he performed Ashwamedh Yagya and issued gold coins depicting sacrificial horses. Okay, चिल्ड्रन ये जो थे समुद्रगुप्त, ये बहुत ही पावरफुल थे. ओके. इन्होंने जो है कुछ यज्ञ भी परफॉर्म किया था, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है चिल्ड्रन अश्वमेध यज्ञ के बारे में. राइट चिल्ड्रन, ये जो थे समुद्रगुप्त, उन्होंने ये परफॉर्म भी किया था. अंडरस्टूड? क्योंकि ये बहुत पावरफुल रूलर थे. ओके. सो उन्होंने ये यज्ञ परफॉर्म किया था. एंड इवन वो कॉइन भी उन्होंने इश्यू कराई थी. ओके. इट ऑल्सो डिस्क्राइब द समुद्रगुप्त लव म्यूजिक. और इसमें वो भी बताया गया है चिल्ड्रन, डिस्क्राइब किया गया है कि उनको म्यूजिक बहुत पसंद थी. ओके. एंड देयर वर सम कॉइन्स वेयर ही इज शोन प्लेइंग वीणा. और कुछ ऐसे भी कॉइन्स पाए गए हैं चिल्ड्रन जहाँ पे ऐसी पिक्चर्स उस पे बनाई गई है कि जिसपे वो वीणा भी बजाते हुए नजर आए हैं. ओके चिल्ड्रन. सो ही वाज मल्टी टैलेंटेड पर्सन. ओके. वो बहुत ज्यादा चिल्ड्रन, वो सभी चीजों में इनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था. ही वॉज अ वेरी काइंड रूलर. अंडरस्टूड चिल्ड्रन? यस, आई एम टॉकिंग अबाउट हु I have spoken about Samudragupta. Is that clear, children? Now next, Deoghar Vishnu Temple. Now Deoghar children is a famous for its Vishnu Temple के लिए ये famous है. Okay, and it is also called as Dashwatra Temple. And Deoghar is about 125 kilometer from Jhansi. That is in UP, right children? And it is one of the earliest Hindu temples. और ये सबसे पुराना चिल्ड्रन एक पुराने टेम्पलों में से एक टेम्पल है ये जो देवगढ़ टेम्पल. ओके. और ये किसके बने हुए हैं? स्टोन एंड ब्रिक्स. राइट. एंट्रेंस हैज पेंटिंग, डेकोरेशन, इमेजेस फ्रॉम रामायण, लॉर्ड कृष्ण. ओके. ये सारे इमेजेस जो पेंटिंग्स हैं वहां पर बनाई गई है. ठीक है. रामायण, लॉर्ड कृष्ण की. एंड इट ऑल्सो शो हनुमान कैरिंग अ हिल कंटेनिंग द हर्ब्स. चिल्ड्रन हमने देखा है हनुमान जी को. राइट. उन्होंने जो पहाड़ जो है उठा लिया था, वो जो हर्ब्स मेडिसिन के लिए. राइट. जब वो जो लक्ष्मण को वो घायल हो गए थे. राइट. और उनको किसने जख्मी कर दिया था? जो रावण के जो भाई थे. राइट. पुत्र, सॉरी. ओके. जो पुत्र थे, सॉरी सन, बाय द सन, जो मेघनाद. राइट चिल्ड्रन, उन्होंने घायल कर दिया था. राइट. उनको जख्मी कर दिया था. तब उन्होंने, हनुमान जी ने क्या किया था? जो वो पहाड़ उठा लिए थे. राइट. जो पूरा मेडिसिनल हर्ब से जो था. राइट. सो वो भी ऐसी पेंटिंग्स कुछ वहां पे बनाई गई है. अंडरस्टूड चिल्ड्रन? नाउ we will see children discuss about the hierarchy of the rulers. Okay. So children, पहले hierarchy of rulers means इसमें हमें पता चल जाएगा children कि पहले कौन से रूलर थे, उसके बाद कौन से रूलर आए. ठीक है. तो चिल्ड्रन पहले हमने देखा श्री गुप्त के बारे में. चिल्ड्रन वो इसमें मेंशन नहीं है, बट आपको याद रखना है कि फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर और गुप्ता डायनेस्टी वॉज श्री गुप्त. ओके. और उसके बाद चिल्ड्रन कौन आए थे? श्री गुप्त के बाद श्रीगुप्त के जो बेटे थे उनका नाम था घटोत्कच. अंडरस्टूड चिल्ड्रन? वो आए थे. ठीक है. बट वो भी उतना बड़ा एम्पायर उन्होंने नहीं बना पाए, वो उतने फेमस नहीं हो पाए. बट ये जो थे श्रीगुप्त और घटोत्कच, इन्होंने दोनों ने एक टाइटल अडॉप्ट किया था महाराजा का. ठीक है. जो श्रीगुप्त थे वो भी महाराजा का टाइटल अडॉप्ट किए थे, और जो घटोत्कच थे चिल्ड्रन, उन्होंने भी महाराजा का टाइटल अडॉप्ट किया था. बट वो इतने पावरफुल नहीं थे, उन्होंने उतना बड़ा एम्पायर क्रिएट नहीं कर पाए थे. ठीक है. और जो फेमस पावरफुल रूलर थे वो कौन था चिल्ड्रन? चंद्रगुप्त फर्स्ट. और वो कब तक रूल किए? फ्रॉम 320 टू 335 एडी. उनके बाद कौन आया? समुद्रगुप्त. अंडरस्टूड? नाउ समुद्रगुप्त ने कब से कब तक रूल किया? फ्रॉम 335 टू 375. और उनके बाद चिल्ड्रन कौन आया? दैट इज चंद्रगुप्त 2. और उनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है. देन उनके बाद कौन आया चिल्ड्रन? कुमारगुप्त. और उसके बाद स्कंदगुप्त.
ओके। और चिल्ड्रन ऐसे और भी बहुत सारे सक्सेसिव रूलर्स हैं, ओके। बट ये जो है कुछ पॉपुलर्स गुप्ता जो है रूलर है गुप्ता पीरियड के। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? जो गुप्ता डायनेस्टी के ये कुछ फेमस रूलर्स है और इन्हीं के बारे में चिल्ड्रन आपके बुक में भी दिया है, राइट। बट इनके अलावा भी ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी और भी सक्सेसिव रूलर्स है, बट हम केवल इनके बारे में पढ़ेंगे। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? Now we will discuss about first Chandragupta first. Understood? That from what period he has ruled, कब से कब तक उन्होंने rule किया इंडिया पे? From 320 to 335 C. Now C, that means common era after the birth of Jesus Christ, right? And he was the first powerful Gupta ruler. वो first powerful Gupta ruler थे of Gupta dynasty, right children? And he married Kumara Devi, अ प्रिंसेस ऑफ लिच्छवी ट्राइब, ओके। तो उन्होंने किससे शादी की थी चिल्ड्रन? जो है कुमार देवी, जो कि एक लिच्छवी प्रिंसेस थी, उनसे उन्होंने शादी की थी, ओके। और ऐसा कहा गया चिल्ड्रन जो वहां का प्रोविंस था वो उनके पास चला गया, क्योंकि वो लिच्छवी प्रिंसेस थे, तो जो वो जगह थी वो वहां का वो उनका ससुराल था, राइट। तो वो ऑटोमेटिकली जो जगह है वहां पे उन्होंने कोई अटैक नहीं किया था, वो जगह उनको खुद ही मिल गई। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? नाउ हिज एम्पायर, और ऐसा नहीं है कि वो और जगहों पे अटैक नहीं किए, ऐसा नहीं है, ये केवल हम लिच्छवी, ओके, वो जो है उसकी हम बात कर रहे हैं, ओके। नाउ हिज एम्पायर कहाँ से कहाँ तक था चिल्ड्रन? हिज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम मगध टू प्रयाग, दैट इज इलाहाबाद, राइट चिल्ड्रन। पहले उसको इलाहाबाद का नाम एकदम स्टार्टिंग में क्या था? प्रयाग, राइट। फिर उसका नाम क्या पड़ा? इलाहाबाद। और अब रिसेंटली उसका नाम क्या है? प्रयाग, राइट चिल्ड्रन? यस। और इन्होंने कौन सा टाइटल अडॉप्ट किया चिल्ड्रन? इन्होंने जो है कुछ अलग टाइटल अडॉप्ट किया। जो पहले हमने पढ़ा श्रीगुप्त और घटोत्कच, वो दोनों ने महाराजा का टाइटल अडॉप्ट किया था, राइट। पर जो चंद्रगुप्त वन है उन्होंने कौन सा टाइटल अडॉप्ट किया था? महाराज अधिराज, ओके। इसका मतलब होता है द किंग ऑफ किंग, राजाओं के राजा। अंडरस्टूड? क्लियर? सो इसीलिए उनका टाइटल चिल्ड्रन आप याद रखना, महाराज अधिराज, ओके। दैट मीन्स द किंग ऑफ किंग्स, ओके, राजाओं के राजा। Come on here, now let's discuss in detail. Now Gupta period start era is known as golden period in Indian history. Control Magad to Prayag with उनका capital क्या था? Patliputra, okay. Now he was a very peaceful ruler because he made alliances. Now children, what do you mean by alliances? That means association, forming union, or dealing with someone, okay, ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लोमेसी एंड मैरिज। कुछ वो टैक्टिक्स, कुछ तरीका वो यूज करते थे, ओके, अटैक करने के लिए, कुछ आइडियाज वगैरह। और कुछ जो है मैरिज, जैसे हमने यहाँ पे देखा, जो उनको ऑलरेडी वो उन्होंने कुमार देवी वहां से उनसे शादी की, तो वो जगह ऑलरेडी उनके अंडर में आ गई, राइट। एंड मैरिड टू प्रिंसेस ऑफ लिच्छवी प्रोविंस नेम्ड कुमारा देवी, ओके। रिलीज गोल्ड कॉइन्स, उन्होंने इस समय गोल्ड कॉइन्स भी रिलीज कराई थी, ओके, इश्यू कराया था ऑन द, और उसमें कुछ पिक्चर्स भी थी उनकी वाइफ की, ओके, ऑन द नेम ऑफ हिज वाइफ टू मार्क द मैरिड एंड पॉलिटिकल अलायंसेस, ओके। सो वो जगह थी वो उनकी कंट्रोल में ऑटोमेटिकली आ गई थी। लिच्छवी प्रोविंस केम अंडर हिज कंट्रोल आफ्टर मैरिज, ओके। सो जो लिच्छवी प्रोविंस थी, जो वो जगह थी, जो स्टेट थी चिल्ड्रेन, वो उनके कंट्रोल में आ गई ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो उनका ससुराल है, राइट। तो वो जगह उनकी ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ गई। ह्यूज गंगेटिक प्लेन एंड मिनरल सोर्सेज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमिक आल्सो, एंड ही वाज सक्सीडेड बाय समुद्रगुप्त। अंडरस्टूड? नाउ चिल्ड्रन, हु इज समुद्रगुप्त? ओके, समुद्रगुप्त, ही इज द सन ऑफ चंद्रगुप्त वन, ओके। नाउ नेक्स्ट we will discuss about Samudragupta, okay children. So Samudragupta, he was the son of Gupta emperor Chandragupta I. और children, चंद्रगुप्त वन किसके बेटे थे पता है आपको? चंद्रगुप्त वन जो है वो घटोत्कच के वो बेटे थे, ओके। और घटोत्कच के पिता कौन थे? श्रीगुप्त थे। अंडरस्टूड? इसीलिए मैंने घटोत्कच का नाम आपको बताया था, इसीलिए वो इम्पोर्टेंट है। और उन्होंने भी कौन सा टाइटल अडॉप्ट किया था? महाराजा का। और चंद्रगुप्त ने क्या, वन ने कौन सा टाइटल अडॉप्ट किया था? उन्होंने महाराज अधिराज का टाइटल अडॉप्ट किया था, राइट चिल्ड्रन।
तो श्रीगुप्त के चिल्ड्रन आपको ये याद रखना है, श्रीगुप्त के जो बेटे थे वो थे घटोत्कच। घटोत्कच के बेटे थे वो चंद्रगुप्त वन थे, और चंद्रगुप्त वन के कौन बेटे हैं चिल्ड्रन? समुद्रगुप्त। अंडरस्टूड? और समुद्रगुप्त के पिता तो हमें पता है कौन है, चंद्रगुप्त वन, और उनकी माता का नाम क्या है, उनकी मदर का नाम क्या है? कुमारा देवी। अंडरस्टूड? एंड ही आल्सो बिलोंग टू लिच्छवी गाना, दैट मींस क्लैन, okay, tribe you can say. Okay, now he ruled for period 335 to 375 CE. Okay, and he was the son of Chandragupta I, and he was the greatest ruler. And sources that gives information on his region, that is Allahabad pillar inscription, that is Allahabad pillar inscription is also known as Prayag Prasasti, right children? So we have already read, okay, in our previous slide, right, that is Allahabad pillar inscription under the sources, right children, that we have seen. Okay, so children, an inscription engraved on pillar of Allahabad, children, popularly called Allahabad pillar inscription, or you can say Prayag Prasasti, is main source of information of this region. इस टाइम के इस पीरियड का ये जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. Why? Because it lists the region conquered by the king. क्योंकि इसमें हमें पता चलता है कि उस समय कौन से किंग थे जो उन्होंने रूल किया था. उस पिलर इंस्क्रिप्शन में सारी चीजें लिखी गई थी. ओके, इवन और हमें क्या पता चलता है, इट ऑल्सो मेंशन द एंसेस्टर्स ऑफ द किंग, मतलब इनके पहले, समुद्रगुप्त के पहले कौन से राजा थे, उनके पहले कौन था जो रूल किया था. ओके, सो उनके एंसेस्टर्स के बारे में भी हमें जो है पता चलता है ये जो पिलर इंस्क्रिप्शन है. एंड इवन द प्रशस्ति वाज कंपोज्ड बाय किसने कंपोज किया था? बाय समुद्रगुप्त कोर्ट पोएट, राइट चिल्ड्रन, जिनका नाम था हरिसेना, राइट चिल्ड्रन, क्लियर? Now, Samudragupta was a son of Chandragupta I. Allahabad pillar inscription describe his wealth. He too expanded Gupta Empire. इन्होंने गुप्ता एम्पायर को बहुत ज्यादा एक्सपांड किया था. He is also known as Napoleon of India. इनको जो है एक टाइटल दिया गया था, नेपोलियन ऑफ इंडिया भी इनको कहा है. और इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया किसने कहा था? बाय द हिस्टोरियन, एक हिस्टोरियन ने उनको कहा था, और हिस्टोरियन का नाम था विंसेंट स्मिथ. ओके, उन्होंने ये टाइटल उनको दिया था. ओके, बिकॉज ऑफ हिज ब्रेवरी, वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे. ओके, ड्यू टू हिज ब्रेवरी ही इज गिवन द टाइटल नेपोलियन ऑफ इंडिया. सो चिल्ड्रन, यू हैव टू रिमेंबर, इफ यू वांट चिल्ड्रन, यू कैन नोट डाउन इन योर बुक, ओके, और इन योर फैन नोटबुक और रफ नोटबुक एनीवेयर, दैट समुद्रगुप्त इज आल्सो नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ हिज ब्रेवरी, क्योंकि उन्होंने इतना ज्यादा अपना, उनके समय पे उन्होंने अपना एम्पायर बहुत ज्यादा एक्सटेंड किया था. ओके, ही वॉन मेनी वॉर्स एंड वॉज पावरफुल रूलर. उन्होंने बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ लड़ी और वो बहुत ज्यादा पावरफुल रूलर थे. ओके, इसीलिए उन्होंने चिल्ड्रन अश्वमेध यज्ञ भी परफॉर्म उन्होंने किया था. ओके, ही फर्स्ट डिफीटेड नॉर्दर्न रूलर्स लाइक मथुरा, पद्मावती, अचित्रा, बरेली, दैट इज वेस्टर्न यूपी, ईस्टर्न इंडिया, and he made 12 South Indian rulers like Odisha, Andhra and Tamil accept his powers. ऐसे बहुत लोगों को उन्होंने जैसे वो बना कर दिया कि वो उनको एक राजा, एक भगवान की तरह माने. ओके, he allowed them to rule and in return to got tribute from the king. उन्होंने कितने सारे रूलर को हराया भी, बट वो डायरेक्टली वहां पे रूल उन्होंने नहीं किया. उन्होंने कहा कि आप वहां पे रूल कर सकते हैं, बट एक साल भर में जो एनुअल ट्रिब्यूट है, ओके, लमसम मनी या कुछ वैल्यूएबल थिंग आपको उनको देनी पड़ेगी. ओके, नाउ मेनी रूलर्स ऑफ बंगाल, असम, नेपाल, एमपी एंड राजस्थान सरेंडर टू समुद्रगुप्त. ओके, सो बहुत सारे रूलर्स ने अपना किंगडम्स जो है वो भी सरेंडर उन्होंने कर दिया था. ओके, बिकॉज समुद्रगुप्त वाज वेरी पावरफुल, वेरी ब्रेव रूलर of Gupta dynasty. Many neighboring rulers offered their daughters, to marry him. बहुत सारे जो नेबरिंग रूलर्स थे उन्होंने ऑफर भी दिया था, ओके, समुद्रगुप्त की कि वो डॉटर से उनके शादी कर ले. ओके, एंड ही वाज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर. वो एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, एक अच्छे म्यूजिशियन भी थे, एक अच्छे पोएट भी थे. ओके, ऐसा कहा है कि बहुत सारी पोएम्स भी उन्होंने लिखी हैं. एंड ही वाज अ गुड स्कॉलर आल्सो, एंड ही वाज आल्सो नोन एज कविराज. ओके, क्योंकि उनको पोएम्स वगैरह भी लिखने का शौक था, तो इसीलिए उनको कवि राजा भी कहा गया है. इवन उनको अलग अलग टाइटल दिए गए, जैसे कविराज,
देन परम भागवत, इवन अश्वमेध परिक्रमा, क्योंकि उन्होंने अश्वमेध परफॉर्म किया था इसीलिए भी उनको अश्व ये कहा गया है. देन ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओके विक्रम. अंडरस्टूड. सो when he respected all religions, जितने भी religions थे वो सभी religions को वो respect करते थे. Understood now children? Now see children, in your book it is given now what is prashasti, right children? So children, the word comes from Sanskrit. Okay, the word prashasti comes from the Sanskrit and means in praise of. Praise of मतलब प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना. Okay children, so prashasti, that means a praise of. Okay, so children, Allahabad pillar inscription is also known as Praya Prashasti. Okay, जो ये अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है चिल्ड्रेन, पिलर जो खंबे होते हैं, राइट चिल्ड्रेन, इंस्क्रिप्शन जो उस पे लिखाई जो लिखा जाता है, ओके, उसमें प्रेस किया गया. इन प्रेस मतलब उसमें उनकी प्रशंसा की गई, उसमें उनकी तारीफ की गई कि ये जो समुद्रगुप्त थे वो कितने ज्यादा ब्रेव थे, पावरफुल रूलर्स थे, उन्होंने कहाँ कहाँ अटैक किया, उनका एम्पायर कितना बड़ा था. ओके, वो सारी चीजें उसमें लिखी गई है. ओके, ये ऑल्सो नोन एज प्रयाग प्रशस्ति, राइट, कंपोज बाय हरिसेना. ओके, और इसको किसने लिखा था चिल्ड्रन, ये जो किन्होंने तारीफ की थी वो थे हरिसेना, जो कि समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे. अंडरस्टूड. नाउ इट इज द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ समुद्रगुप्त रीजन, और ये बहुत ही ज्यादा मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है. ओके, समुद्रगुप्त के पीरियड के समय. ओके, इट लिस्ट द रीजन्स कॉन्कर्ड बाय समुद्रगुप्त. उसमें हमें क्या और बताते हैं कि उन्होंने कौन से रीजन्स कॉन्कर्ड किए थे. And also mentions the ancestors of the king. It listed the rulers against whom Samudragupta fought. Okay, and even it also described the policy. कौन सी policies उन्होंने अपनाई थी. Okay, अलग अलग rulers जो थे उनको हराने के लिए. Okay, so Samudragupta followed towards each set of rulers he fought with. Okay, उन्होंने जितने rulers के साथ उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, उन्होंने किस तरीके से पॉलिसी बनाई थी, वो सारी चीजें जो है वो लिखी गई है. Understood? Now children, now next, and children, he is also called as the kind king. Understood? Because he used to help everyone, whether it is poor, helpless, or if anyone is in trouble, if anyone is having any problem, he used to help everyone. Understood? So this Samudragupta, he was a very kind king. Understood? Now children, see, now we will discuss about the administration of this Samudragupta. Okay, means how he has defeated the other rulers. Okay, so that we are going to discuss in Prayag Prashasti. See children, in your book on page number 68, that is given the Prayag Prashasti. Now let's discuss what Prayag Prashasti contains. So the Prayag Prashasti children, it is the list of the rulers against whom Samudragupta fought. Okay, उसमें सारे लिस्ट है दिए गए कि उन्होंने किन किन रूलर्स के साथ जो है लड़ाइयाँ लड़ी थी. It also described the policy that it followed toward each set of rulers. Understood? So children, in the north, Samudragupta defeated 4 powerful queens. Okay, so children, नॉर्थ साइड में उन्होंने समुद्रगुप्त ने 4 पावरफुल राजाओं को उन्होंने हराया था और कुछ स्मॉलर किंग को भी उन्होंने हराया था. A large part of northern India became a part of his empire. So एक large part of हिस्सा जो नॉर्थन साइड है वो किनके कब्जे में हो गया था, वो समुद्रगुप्त के. ओके, सो दिस टेरिटरी वाज एडमिनिस्ट्रेटेड डायरेक्ट, और यहाँ पे वो डायरेक्ट कंट्रोल था उनका, डायरेक्ट वो रूल करते थे यहाँ पे. ठीक है, इन द नॉर्थ साइड. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द डेक्कन इन द साउथ. नाउ ए समुद्रगुप्त डिफीटेड 12 रूलर्स. ओके, बट ही डिड नॉट एनेक्स देम, बट उन्होंने टेरिटरीज को अपने कब्जे में, अपने कंट्रोल में नहीं किया था. दिस रूलर्स हैड टू पे एनुअल ट्रिब्यूट. ये जो रूलर्स हैं उनको समुद्रगुप्त ने कहा था कि आप यहाँ के राजा बने रह सकते, बट कब तक, जब तक मैं चाहूंगा. मतलब आपको हर साल आपको कुछ पैसे जो है या ऐसे वो या कुछ वैल्यूएबल चीजें जो है आपको भरनी पड़ेगी. दैट इज एनुअल ट्रिब्यूट. अंडरस्टूड? सो द रूलर्स हैड टू एक्सेप्ट समुद्रगुप्त एज देयर ओवरलॉर्ड. क्योंकि एक भगवान की तरह, एक अपने राजा की तरह उनको समझना है और उनको देना है कुछ एनुअल ट्रिब्यूट, उनको भरते रहना है. तभी तक जो है वो अपने पोस्ट पे बने रहेंगे. ओके, तब तक ही उनकी जो जान है वो बची रहेगी, जब तक जो वो मनी या और कुछ चीजें वो देते रहेंगे. अंडरस्टूड? नाउ ही ऑल्सो defeated toward the east side also. He attacked on eastern part also.
So he defeated kingdoms such as Nepal, then Assam and Bengals. Okay, the rulers had to pay him tribute and had to accept his suzerainty. Now, what do you mean by suzerainty, children? That means the overlordship. Understood? यहाँ पे भी जो रूलर्स हैं उनको ट्रिब्यूट वो भरना पड़ता था. अंडरस्टूड? यहाँ पे भी जो है वो डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर रहे थे, वो इनडायरेक्टली उन्होंने कंट्रोल अपना रखा था यहाँ पे. ओके, हमेशा वो यहाँ पे चेक करते रहते थे. ओके, सारी चीजें. So next, Vindhya region. Now Samudragupta also defeated the forest tribes, okay, of the Vindhya region also. So here also he also defeated the forest tribal जो आदिवासी लोग हैं उन पे भी उन्होंने उनको भी उन्होंने हराया था. Okay, then the rulers offered tributes and gift to the kings. और ये जो rulers थे वो भी कुछ tributes या gift के form पे वो चीजें वो किसको देते थे? King. और वो कौन था? Main king, that is Samudragupta. Understood, children? So I hope everything is clear whatever we have discussed. Children, just wait. Yeah, so children, I hope the content which we have discussed in our today's class is clear. Yes, so children, today we have discussed the introduction, then we have discussed the sources, and under sources we have discussed about archaeological sources and literary sources. Right, children? Then we have discussed about Sri Gupta, who was the founder of this Gupta dynasty. Right, children? This and who then उसके श्रीगुप्त के बाद कौन आया था चिल्ड्रन? घटोत्कच. राइट चिल्ड्रन? सो ये श्रीगुप्त के बेटे कौन थे? घटोत्कच. राइट चिल्ड्रन? और घटोत्कच और श्रीगुप्त ये उतने पावरफुल फेमस रूलर नहीं थे. राइट, उनका एम्पायर उतना बड़ा नहीं था, पर जो फर्स्ट पावरफुल रूलर थे वो थे चंद्रगुप्त वन. राइट चिल्ड्रन? ओके, और उसके बाद हमने किन के बारे में पढ़ा? समुद्रगुप्त. Right, children? And we have discussed Allahabad pillar inscription also, prayer, and it is also known as Prayag Prashasti also. Right, children? So till here today we have discussed. Right, children? So now what you will do? You are going to read the topic what we have discussed in our today's class. Is that clear to all of you? Yes, children? So children, goodbye. Take care. Stay home and stay safe.